Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So we start the discussion on binary codes, right? And study some of the basic codes and try to understand the concept. Okay, last time we said a BCD code, right, which is basically representing all the 10 digits with a binary coded decimal, right? So we are just coding every digit as a binary number. Okay, there is a difference between BCD and binary, and we will see that. For example, in the binary, the 10 will be written as 10 कैसे होगा 1010, right? But in BCD, each digit will have 4-bit code. Okay, so 1 का अलग code होगा 4-bit और 0 का अलग code. So that is the difference. And why we are doing it? Because the human being, जो हम अक्सर देखते हैं weighing machine है, उस पे आपको displays कैसे नजर आते हैं? Rather से segment नजर आते हैं in a decimal form. देखो binary में या आपको कोई नहीं दिखाएगा. Computer when interfacing with the human beings, right? They will show you the results in a more natural way we understand. Like weighing machine है, ठीक है? उसपे जो आपको digits नजर आ जाएंगे, वो decimal में नजर आएंगे. Okay? So in order to display each digit, what we need BCD input. Okay? बस मैं आपको example दूँ कि let's say I have two digits है और digits आपको पता नहीं कैसे बनते हैं. वो जो display होता है वो 7 segment display होता है इस तरह हमारे पास. ठीक है, ये LEDs होती हैं और ये आप लैब में भी देखेंगे. ठीक है, और ये 7 segments होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 segments. With the help of that we can make any digit. तो अब जो 7 segment display होगा मेरा, वो उसको जो input आएगी, ठीक है. So let's say this is my display, right? And I have another display here, right? And here also it has these segments, right? Like this. So I'm displaying a 2-digit, let's suppose. ठीक है, लेकिन जो मेरा कंप्यूटर होगा, the computer I'm using, या जो भी माइक्रो प्रोसेसर है या डिजिटल एक सिस्टम है, right? Digital computer, right? So that will give me the output in binary. Let's say 2 digit तक maximum मैं कितना जा सकता हूँ? I can go 99. 0 to 99, 10, 100 quantities, right? और आपके ख्याल में कितने बिट्स होने चाहिए अगर डिजिटल सिस्टम देगा? 100 तक कितने बिट्स चाहिए? 0 से 99 तक. 99 मैक्सिमम है ना? 7 bits. 3 bits for 7 is what? 128. So 100 is covered in that, right? So we need 7 bits, right? So that we can display this digit, right, at the output. Weighing machine है, कोई और चीज है, तो we want to display this, right? Sir, BCD में हर digit 7 bits, 8 8 चाहिए. अच्छा, 2 raised power 8 is BCD में हर digit जी वो हम देखते हैं ना. लेकिन ये जो कंप्यूटर है ये तो आपको बाइनरी आउटपुट देगा ना. It always give a binary output, and then we try to convert this binary into BCD, and then we can easily display each digit. Okay? मकसद BCD का ये था कि अगर आपने सेपरेट एक डेसिमल में एक नंबर को दिखाना है तो इट्स वेरी इजी, क्योंकि इसको जो इनपुट आ रही होगी वो क्या आ रही होगी? 4 बिट्स आ रही होंगी. 4 बिट्स आ रही होंगी और वो उसके हिसाब से ये नंबर डिस्प्ले हो जाएगा. इसको भी 4 बिट्स आ रही होंगी जो कि क्या होंगी, किस फॉर्म में होंगी? BCD. This will be in BCD form. This will be also in BCD form. ये क्या चीज आ रही है आउटपुट? कंप्यूटर की बाइनरी. So maybe we have to convert this binary. So ये एक हम सर्किट बना देंगे जिसमें बाइनरी टू BCD कन्वर्टर, और ये आप आगे चल के खुद डिजाइन करेंगे ऐसी चीजें. ठीक है, कि एक बाइनरी इनपुट आ रही है, उसमें आपसे 2 सेपरेट BCD नंबर्स लेने हैं और वो BCD को फिर हम क्या करेंगे, सिंपली एक 7 सेगमेंट डिकोडर की IC को दे देंगे और वो LEDs को चले जाएगी, उससे वो लाइट अप हो जाएगी.
So basically we need this 4-digit binary which is called BCD, binary coded decimal for each digit. तो मकसद ये है इसका BCD का बैकग्राउंड मतलब बताना जरूरी है कि मैं ये कह दूं कि why we are doing the coding. So the coding is for the purpose of human readability and we want to take every digit, लेकिन the information is again binary. Okay? ये जो डिजिटल कंप्यूटर है या माइक्रोप्रोसेसर है या कुछ भी है कैलकुलेट कर रहा है या मेन मशीन है लोड सेल है वो डिजिटल में कन्वर्ट करके आपको एक बाइनरी नंबर दे रहा है राइट एंड दिस बाइनरी नंबर हैज टू बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू सम अदर फॉर्म स्टिल इन बाइनरी लेकिन हमारा जो फॉर्मेट होगा वो कैसा होगा ये 0 से लेकर 9 तक ही जाएगा ये 1010 नहीं हो सकता so we said BCD is limited each digit is limited to is coded. So you can go from 0 to 9 only. तो हमारे पास डिजिट यहाँ डिस्प्ले करने के लिए कौन से हैं? डिजिटल कैप्चर. We don't want to set 1010. That will give you a wrong display. So that's why we need coding, right? जो कि आपने मतलब outside world से या एक discrete information को recognize करना है कि कौन सा digit है. For example, here we are trying to recognize which digit is coming and then we are displaying the segment. For example, अगर इधर 0001 आ रहा है तो मैं इन दो को लाइट अप करूंगा बाकी को ऑफ कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगा. इधर 2 से बन जाएगा सारे डिजिट इसके एलईडीज को ऑन ऑफ करूंगा उससे मेरे सारे डिजिट्स बन जाएंगे. So that is the basic concept. Okay? So let's see that. Let's go further and see. So BCD को आपका आइडिया हो गया कि why we need BCD? Basically for human interface, because we understand more in decimal system. So every binary number has to be converted into each digit. अच्छा, अब आगे चल के हमने ये बात की थी कि अगर जो 10 होगा, 10 जो डिजिट होगा या 10 नंबर होगा, वो BCD में कैसे शो होगा? जी जी हर डिजिट के लिए क्योंकि 4-bit कोड है हमने कोडिंग कर दी है ना वो वी हैव कोडेड एंड आवर कंप्यूटर और एनी सिस्टम अंडरस्टैंड के एक डिजिट के लिए 4-bit होंगे ठीक है सो द माय कोड विल लुक लाइक दिस तो 0 के लिए 4-bit 1 के लिए 4 बिट्स ठीक है जी और 0 के लिए ये आ जाएंगे सो दिस इज 10 11 कैसा होगा 11 ऐसा होगा ठीक है लेकिन बाइनरी में ऐसा नहीं होता 11 सो दिस इज अ BCD कोड दिस इज अ BCD रिप्रेजेंटेशन ठीक है एवरी डिजिट इज इक्वल टू these codes so we have decoded information in the form digits की बजाय हमने उसका बाइनरी डायरेक्ट बाइनरी ले लिया मतलब देखिए वो बाइनरी नंबर दिया 1248 वेटेज ठीक हो गया तो now you could see कि अगर मल्टीपल डिजिट्स हैं लाइक 10 है तो इस तरह होगा 11 इस तरह शो होगा 212 आगे शो होगा तो हर डिजिट के लिए 4-bit कोड आ ठीक है लेकिन whereas 10 in binary is different which is 1010 ठीक है तो now you can distinguish के दोनों में फर्क है इसी तरह डिजिट बढ़ाते जाएंगे तो हर डिजिट के लिए एक 4-bit binary कोड ठीक हो गया नहीं बार कोड इज डिफरेंट बार कोड में तो बेसिकली वो आपकी 1s and 0s ही होते हैं उसमें बेसिकली डिपेंडिंग ऑन कौन से नंबर्स आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं देन वो एक बाइनरी कोड चला जाता है उसको पता चल जाता है क्या चीज़ है अच्छा अब एडिशन देख लेते हैं अब ये नहीं है एक कोडिंग मिल गई हमें क्योंकि आप देखें ना एक कंप्यूटर है अगर वो BCD में एक इनपुट भी ले रहा है लेट्स से और उससे कैलकुलेशन करनी है 2 नंबर्स को ऐड करना है ठीक है तो वो क्या करेगा इट विल ट्राई टू डू द मैनिपुलेशन इन BCD नॉट इन बाइनरी और BCD इज डिफरेंट देन द बाइनरी सो लेट्स सी हाउ वी डू द BCD एडिशन okay if I want to add 2 numbers right and the result should be in BCD remember that और BCD क्या है बाइनरी कोडेड डेसिमल 4-bit के कोड्स होंगे ठीक है तो अभी हम क्योंकि डेसिमल से ज्यादा फेमिलियर हैं इसलिए हमने वो शो किया आपको लेकिन BCD इज ऑलवेज इन बाइनरी फॉर्म 1s and 0s फॉर्म और हर डिजिट के लिए 4 बिट्स ठीक हो गया अच्छा लेट्स सी
So BCD only represent each of the decimal digits 0 through 9 and as single 4-bit value. Adding 2 bits value, the sum is equal to or less than 9, the corresponding BCD value is correct. अच्छा मसलन 2 बिट्स हैं, अगर मैं 3 को, ठीक है जी, और 4 को ऐड करता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास BCD है, इसका क्या कोड होता है जी? ये BCD लिख रहा हूँ, इस साइड पे BCD लिख रहा हूँ, ठीक है, 0011, राइट, और ये क्या है 1, ठीक है। अच्छा, इसको ऐड करने से कितना आना चाहिए? 7, ठीक है, विच इज अगेन अ डिजिट, ठीक है, और इसको ऐड करें बाइनरी को, सिंपल बाइनरी को ऐड करें तो क्या बनता है? विच इज अगेन 7। तो इसका मतलब है कि जो बाइनरी 7 एंड BCD 7 आर सेम बेसिकली, बल्कि 9 तक सेम, ठीक है। अगर 2 नंबर्स को हम ऐड करते हैं और वो एक सिंगल डिजिट आ जाता है 9 तक, तो इसका मतलब BCD और बाइनरी में फर्क नहीं, वी डोंट डू एनीथिंग। लेकिन मसलन अगर मैं 2 नंबर्स और ले लूं, तो मैं यहाँ पे लेट्स से 5 एंड 7 ले लेता हूँ, ठीक है, इनको मैं ऐड करता हूँ। अब 5 का कोड क्या होगा जी? 101, और ये होगा 7, राइट, इफ आई ऐड, और मेरे पास आना क्या चाहिए? 12, ठीक है जी। सो आंसर शुड बी 12, राइट। और आपका, अच्छा, इसको मैं वैसे ऐड करूं बाइनरीज को, तो क्या मेरे पास मिलता है? ये 1 आ गया, ये आ गया, 1 आ गया, ठीक है, 1 आ गया, लेकिन ये क्या आ गया? 12 बाइनरी आ गया। हमें तो आंसर BCD में चाहिए था, ठीक है। We wanted the input should be BCD, the second number should be BCD, and output should all be also BCD. बिट्स बढ़ानी पड़ेंगी। हमारे पास आंसर कैसे आना चाहिए था? आपके ख्याल में आंसर कैसे आना चाहिए था? आंसर ये आपके पास ये आना चाहिए था ना, आंसर ये आना चाहिए था, हर डिजिट का 4 बिट का 1 2 आना चाहिए था, लेकिन आंसर हमारा बाइनरी में है। जाहिर है बाइनरी में ऐड करें तो बाइनरी आएगी। इसका मतलब है आप 9 से, जब भी सम आपका 9 से बड़ा होगा तो फिर आंसर गलत होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ट्रिक ये है कि इसमें और इसमें फर्क क्या है? अगर मैं इसमें कुछ चीज ऐड कर दूं तो वो बन सकता है, ठीक? वो बाइनरी कितनी है? वो बाइनरी कितनी है राइट साइड वाली? नहीं, बाइनरी वैल्यू कितनी है? 18 है। तो वो लेफ्ट साइड पे कितनी है? 12। अगर इसका मतलब मैं क्या करूं तो वो मुझे 18 मिल जाए प्लस 6 ऐड, ठीक है। तो ये अब जनरल रूल हो गया हमारे पास कि अगर 2 BCD डिजिट्स को मैं ऐड करता हूं और मेरे पास सम 9 से ज्यादा हो जाता है, 9 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाइनरी और BCD एक ही है, जो ही 9 से वो बढ़ता है तो मैं क्या करूं, करेक्शन के लिए इसमें 6 ऐड करूं। मेरे पास एक ऐसा सर्किट हो ये डिटेक्ट करने के लिए ये 9 से बड़ा नंबर आ गया, जी जी, में से 6 ऐड करें, लेकिन आप कोई भी नंबर ले लें, ठीक है। और मैक्सिमम आप 2 नंबर्स क्या हो सकते हैं? मैक्सिमम नंबर क्या हो सकते हैं? 2 9 हो सकते हैं, और एक कैरी भी कहीं से आ सकता है, पीछे से भी कैरी आ सकता है, ठीक है। तो फिर 19 तक जा सकता है। इसमें आप देखें कि 19 बाइनरी और उसमें 6 ऐड करेंगे तो आपको BCD मिल जाएगा, 19 मिल जाएगा जी। नहीं, वो हम देखते हैं, मल्टीपल डिजिट का भी देखते हैं। अभी हम सिंगल 2 डिजिट की बात करें कि अगर हम 2 डिजिट्स को BCDs को ऐड करें, ये भी BCD है, ये भी BCD है, उसको ऐड किया, यहां भी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ये भी BCD 7 था, ये भी BCD 7 था, ठीक है, हमें, और बाइनरी भी 7 था, क्योंकि एडिशन बाइनरी में हो रही है, BCD में नहीं हो रही। बट वी वांटेड द करेक्ट आंसर इन BCD लाइक दिस, ये आंसर मिलना चाहिए था, क्योंकि हम इनपुट BCD में कर रहे हैं, ये हमारा BCD है, ये हमारा BCD है, तो आंसर भी BCD में मिलना चाहिए था, वेयर एज वी आर एडिंग अप वंस एंड जीरोस व्हिच इज बाइनरी एडिशन, ठीक है। तो हमें कुछ करेक्शन उसमें करनी पड़ेगी ताकि हमें BCD एग्जैक्ट नंबर मिल जाए। तो अगर इसमें 6 ऐड कर दें, इसमें 6 ऐड कर दें जी, 110 है ना 6, तो ये मैंने ऐड किया तो क्या आ गया जी, 0 1 1। तो ये देखें, अगर इधर अपेंड 0 कर दूं तो ये वही चीज बन गई कि नहीं बन गई, ठीक है, 12 बन गई।
तो रूल क्या हुआ, जनरल रूल क्या हुआ कि इफ योर सन इज मोर देन 9 एट 6, बस तो वो आपको बीसीडी बन गई। भैया आगे चल के ये चीजें डिजाइन करेंगे आप, यू विल डिजाइन दिस सर्किट योरसेल्फ, यू ट्राई टू डिटेक्ट कि नंबर 9 से बड़ा आया है या नहीं आया, और बेस्ड ऑन दैट लॉजिक राइट यू विल ऐड 6 एंड यू विल गेट द राइट आंसर। ये आगे चलते ये सारी चीजें, ये अभी इसको भूलना नहीं है कि बीसीडी कैसे बनाना, राइट, एडिंग 6 टू इट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब लेट्स गो फर्दर। तो हमने यही कहा कि अगर 9 और 9 से कम है तो बीसीडी और बाइनरी एक ही है, हमें कोई करेक्शन की जरूरत नहीं है, बल्कि 0 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और however when the binary sum is greater than or equal to 1010 which is 10, the result is invalid, right? और उसके लिए ओवरकम करने के लिए क्या है, we are adding 6 to it. When we add 6 we get BCD number and that's fine, right? So the use of 6 works because the difference of carry and the most significant bit, right? हमने दोनों को कंपेयर किया था ना, तो वो बेसिकली 6 का डिफरेंस आता है। Okay, that's why we are adding 6. Why we got this straight? क्योंकि BCD और बाइनरी में डिफरेंस जो आ रहा था 6 का आ रहा था, इसलिए अगर हम 6 ऐड कर देते तो we get the right answer. Okay, तो अगर अब हम देख लेते हैं, एक कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। मसलन ये 4 और 5 को मैंने ऐड किया तो 9 आ गया, which is the right answer. ठीक है, 3 और 7 को किया तो सही आंसर नहीं आया। ठीक है, 9 से बड़ा हो गया, 1010 इज व्हाट 10, 10 में मैंने 6 ऐड किया तो अब देखें 10 आ रहा है बीसीडी में। ठीक है जी, और इसी तरह 9 और 9 को ऐड किया। ठीक है, तो अच्छा इसमें भी अब ये चीज आ गई, तो नेचुरली जो हमारा फर्स्ट सम आया है इधर, ये सम आया है, ये 9 से बड़ा हो गया, तो इसमें भी 6 ऐड किया तो नेचुरली ये देखें ये 1 है, ठीक है, और ये 8 है, सो यू गेट 18 इन बीसीडी। ठीक है, गॉट द आइडिया कि बेसिकली अगर 9 से सम बड़ा आता है, ठीक है, तो 6 ऐड कर देंगे, अगर नहीं आता तो 0 ऐड कर देंगे। अच्छा जी, मल्टीपल डिजिट, अब जो आपने बात की थी कि अगर सिंगल डिजिट नहीं है, 2 डिजिट है या 3 डिजिट है, उनको आप ऐड करें तो वो सिंपल है, वो दैट इज वेरी सिंपल मैकेनिज्म कि वो सिर्फ कैरी आगे स्टेज में चला जाएगा और कुछ नहीं। लेट्स टेक द एग्जांपल। ठीक है, मसलन ये हम कर रहे हैं 295 प्लस 635। ठीक है जी, तो लेट्स डू इट मैनुअली, आई थिंक दैट्स बेटर वे, you can understand. So let me write down this. We are basically doing 295 plus 635. ठीक है, so let's go back. ठीक है, इसको हम देख लेते हैं कि how a multi-digit in BCD is added. Remember, ये आपको ये 295 मैं लिख रहा हूँ डेसिमल में, ये आपके लिए लिख रहा हूँ। इसका BCD जो होगा वो बाइनरी में होगा। ठीक है, 2 का बाइनरी 4 बिट होगा, 9 का 4 बिट होगा, 5 का 5, और वो सारी मैनिपुलेशन कहाँ होनी होगी, 1s और 0s में। ठीक है जी, सो दिस इज फॉर योर कन्वीनियंस, राइट। तो 295 कैसा होगा जी, 2 बेसिक हर डिजिट का आपने 4 बिट कोड लिख देना है, राइट। सो बेसिकली 10, राइट। 9 का क्या होगा जी 1001, एंड 5 का क्या होगा जी 101। तो ये बाइनरी आपको क्विकली मतलब प्रैक्टिस करें, नहीं तो वो जो हमने पहली एक्सरसाइज दी थी 0 से 20 तक दी थी, और बेशक 100 तक प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको कोई भी नंबर लिखने हो तो ये डिफिकल्टी ना हो। अगर डिफिकल्टी हो तो ऊपर वेटेजेस लिख लें और उनको ऐड करके देख लें कि भाई वाकई वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे ये 1 2 4 8 और 4 and 1 5। ठीक है, इसी तरह ये 8 का है, 8 and 1 is 9, राइट। तो यू कैन ऑलवेज ऐड। अच्छा, इसको ऐड कर रहे हैं 635, तो 6 इधर आएगा जाहिर है, विच इज 6 here, राइट, 3 here एंड 5 here। ठीक है जी, और आपने असूल क्या रखने हैं कि यू विल ऐड इफ द सम इज मोर देन 9 ऐड 6, इफ सम इज नॉट मोर देन 9 ऐड 0, राइट। तो इसको ऐड करें जी, 1 और 1 क्या होगा 2, 1 carry here, 1 here, 1 and 1 is 2 again, ये चीज आ गई। अब ये देखें सम किसके बराबर आया, 9 से ज्यादा आ गया, तो क्या करूं जी, मैं करेक्शन करने के लिए क्या करूंगा 6 ऐड करूंगा, ऐड 6 to it।
जी जी, क्योंकि देखिए हर डिजिट को हम उधर ही क्रैक कर रहे हैं और एक आंसर लेके आ रहे हैं ताकि हमें करेक्ट आंसर मिले, ठीक है। तो इसमें मैंने 6 ऐड कर दिया, ठीक है जी। और मेरे पास क्या आया जी, 0 1 here 1 here 0 है, और ये वाला जो है ये इधर नेक्स्ट स्टेज पे कैरी चला गया। और आप देखें अगर इसको मैं 295 ऊपर लिखूं, ठीक है, और नीचे 635 लिखूं, ठीक है, तो ये देखें ये आपके पास 0 ही आता है और एक कैरी आगे जाता है, ठीक है। द सेम थिंग हैपनिंग इन बीसीडी, ठीक है। अगर राइट साइड को भी मैं कंसीडर कर रहा हूँ, वो आपको समझाने के लिए लिखा है, लेकिन इन बीसीडी एवरीथिंग इज 1 and 0। सिर्फ मैं ये सिर्फ ट्रिक ये कर रहा हूँ, अगर 9 से आंसर बड़ा आ जाता तो 6 ऐड कर देता हूँ, नो अदर ट्रिक, राइट। अच्छा अब देखें इसमें क्या होगा जी, 1 1 1 क्या होगा, 3 is 1 here and 1 carry here, 1 and 1 is 2, right, 1 carry here and you get 1 and here is 1. Now see the sum greater than 9, so add 6 to it. So यहाँ भी हम 6 ऐड कर देंगे, 1 1 0 0, और ये क्या आ जाएगा जी, 1 1, ये आ जाएगा 1 और एक कैरी इधर चला, ठीक है। सो अब कैरी इज प्रोपेगेटिंग इन द स्टेजेस, राइट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, 1, तो इसमें मैं क्या करूं, 0 ऐड कर दें, चलो फॉर मतलब क्लैरिटी आई से कि इफ इट इज लेस 9 और लेस देन 9 आई ऐड 0, राइट, तो ये 9 ही आ जाएगा। तो अब देखें ये कौन से डिजिट आ गए आपके, 9 3 0, तो यही आते हैं जी, 10 and 3 13 1, ठीक है, 9 3 0, तो वो सही आ गया, ठीक है जी। वो एंड कैरी आ जाएगा, हाँ वो 1 हो जाएगा ना, 1 में आप इसमें 0 से फैंड कर सकते हैं, वो 1 हो जाएगा। तो इनका अच्छा क्वेश्चन है कि लेट्स से अगर ये 9 से बड़ा कोई इधर आता, 10 आ जाता, तो उसमें जब 1 हम 6 ऐड करते हैं तो एक इधर डिजिट आता और इधर आपका कैरी इस तरह 1 आ जाना था। अब वो 1 क्या है, ये बेसिकली 1 डिजिट है। बीसीडी अगेन 4 बिट्स आपने शो करने हैं, 1 शो करेंगे तो वो बीसीडी नहीं होगा मेरे लिए। 4 बिट्स रिप्रेजेंटेशन इन बीसीडी इज अ बीसीडी, सिंगल 1 इज नॉट बीसीडी रिप्रेजेंटेशन, क्लियर हो गया जी। तो लेकिन इसमें कैरी नहीं था तो नेचुरली ये 0 है, तो इसका मतलब है ये यहाँ पे 0 पड़ा, ठीक है। अगर 1 था तो वो 1 आ जाएगा, ठीक हो गया जी। नाउ यू अंडरस्टैंड द एग्जांपल एंड यू कैन हैंडल द मल्टीपल डिजिट्स, ठीक है। तो ये वो एग्जैक्टली वही चीज हो। अच्छा अब ये तो हो गया सिंपल ऐड करना। अब आपने माइनस भी करना है, अरिथमेटिक में आपने सब्ट्रैक्शन भी करनी है, वो क्या करना है, इसी के साथ सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, नहीं अब ये नॉट टॉकिंग अबाउट द साइन नंबर्स, राइट। तो साइन नंबर में अब प्लस माइनस से डिस्टिंग्विश होगा, जैसे बाइनरी में हम 0 को प्लस शो करते थे और लास्ट साइन बिट 1 होता था तो इसका मतलब वो नेगेटिव नंबर होता था। लेकिन अभी आपके बीसीडी में डिजिट्स कौन से आपके पास, 0 से लेकर 9 तक ही है, तो हम 0 को एज ए प्लस साइन शो करेंगे और 9 को एज नेगेटिव साइन शो करेंगे, साइन शो करना है। तो एक कन्वेंशन तो चूज करनी पड़ेगी ना कि अगर 9 आता है लास्ट बिट में तो वो माइनस होगा बेसिकली, दैट्स अ साइन बिट। तो इसमें देख लेते हैं। So BCD arithmetic involving negative numbers uses tens complement for representing the negative numbers including the sign digit. ये tens complement आएगा, ठीक है। Example, imagine we have to add this. मसलन ये दो चीजें हम कर रहे हैं, 257 and we are subtracting minus 160, यानी इसका मैं tens complement दूंगा और इसके अंदर add मुझे ये मिलना चाहिए। पहले तो मैं देखूंगा कि माइनस 160 मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा और प्लस 160 कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, वो बेसिकली हम इस एग्जांपल में देखेंगे। तो इसकी अर्थमेटिक कैसे करूँ, और हर डिजिट को मैंने आप इसमें क्या शो करना है, बीसीडी, ठीक है। तो लेट्स राइट द बीसीडी, लेट्स क्विकली राइट द बीसीडी एंड सी वेदर वी गेट द रिजल्ट और नॉट।
अच्छा जी, प्लस 257 कैसा होगा? प्लस हमने कहा कि हम प्लस को 0 से शो करेंगे क्योंकि अब 4 बिट डिजिट शो करना, ठीक है। और 2 क्या होगा? 0010, और 5 क्या होगा जी? 101, एंड 7 विल बी 0111, ठीक है। ये तो ये नंबर हो गया। अब -60 कैसे शो होगा? अच्छा देखिए, हमेशा याद रखें कि जब भी नेगेटिव नंबर आ जाएगा तो पहले पॉजिटिव नंबर देखिए, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लें। इवन 2's कॉम्प्लीमेंट है, 9's कॉम्प्लीमेंट है, 10's कॉम्प्लीमेंट है, 15's कॉम्प्लीमेंट है, कुछ भी है, पहले आप पॉजिटिव नंबर लिखेंगे फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो कभी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। और क्विज में प्रॉब्ली क्योंकि वो +14 था, ठीक है, तो वो 0 आ रहा था, या -20 मैंने पूछा था, तो आप पहले +20 लिखेंगे एक साइन लगा के उसके साथ और फिर उसको कन्वर्ट करेंगे। तो दैट वाज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, अब -160 कैसे होगा? सॉरी, पहले +160 कैसा होगा? प्लस 160 जो होगा वो कुछ इस तरह का होगा जी। 4 0 आ जाएंगे, फिर 1 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, और फिर 0 आ जाएगा। अच्छा, अब मैंने क्या करना है? -160 शो करना है, -160 को शो करना है। तो क्या करूं इसका? 10's कॉम्प्लीमेंट, इसका मैं 10's कॉम्प्लीमेंट, और मुझे पता है हर डिजिट क्या है और उसका 10's कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं। 10's कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, भूले तो नहीं? जी, लीस्ट सिग्निफिकेंट 0 को छोड़ना है आपने, ठीक है। फर्स्ट नॉन 0 डिजिट को 10 से सब्ट्रैक्ट करना है और बाकी को 9 से। जी, वो भी कर सकते हैं। another way, वो 2's कॉम्प्लीमेंट लेके और फिर उसमें कुछ ऐड करेंगे, वो फिर करेक्शन डिफरेंट है। पहले हम सिंपल देख लेते हैं कि इसका जैसे BCD में -160 क्या होगा, ठीक है। तो आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? -160, तो इसका हम क्या करें? तो पहले सारे 0। अच्छा, ये पहले तो 0 ही होंगे, ठीक है जी। अब इंडिविजुअल डिजिट की बात कर रहे हैं, ये क्या है? 6, तो इसको किससे सब्ट्रैक्ट करें? 10 से। तो क्या आ गया आंसर? 4, राइट। सो वी राइट 4, राइट। सो 4 कैसा होगा जी? ये बाइनरी वाला तरीका भी देखेंगे कि इसका 2's कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं एंड देन वी डू सम एडजस्टमेंट, ठीक है। कि अगर वो डिजिट 9 से बड़ा है तो 6 ऐड कर देंगे, सम ट्रिक। लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बेसिकली बिहाइंड दिस कि हाउ वी आर डूइंग इट, ठीक है। ये 4 आ गया जी। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट क्या होगा? 9 में से बन गया 8, सो दिस विल बी 100। और अच्छा, जो ये वाला था इसको भी 9 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो 9 आ जाएगा, ठीक है। सो 9 - 0 इज 9, सो 1001। तो अब देखिए ये लास्ट डिजिट 9 आ गया, बट इट शोज इट्स अ नेगेटिव नंबर। 9 at the end of the digit, which is a sign number, is showing it is a sign number, right? And it's a negative number. And अगर फाइंड करना है इस क्या नंबर है, फिर क्या करेंगे? They takes turns complement of each digit. Okay. Now if I add this as these two, ये -160 आ गया, ये मैं इधर लिख देता हूँ। ये मेरे पास आ गया 257 और ये -160, क्योंकि हमें है ना कि सब्ट्रैक्शन नहीं करते बल्कि ऐड कर देते हैं उसका कॉम्प्लीमेंट लेके। सो इफ आई ऐड दिस 1001 here and then 8 here, 4 here and 0 here, ठीक है जी। एंड आई सिंपली एड इट। अच्छा, जब मैंने आई एम एडिंग 2 डिजिट्स, अगेन वही कन्वेंशन रहेगी कि 9 से ज्यादा है तो 6 ऐड, ठीक है। सो ये वाली बेटे, ये ऊपर सर, ये माइनस को कैसे रिप्रेजेंट? जी, देखिए ना, हमने ये ऊपर रूल हमने ये कहा कि इसका जो नेगेटिव नंबर होगा उसका क्या लेना है आपने? 10's कॉम्प्लीमेंट लेना है, ठीक है। जो भी डिजिट्स हैं इनका 10's कॉम्प्लीमेंट लेना है।
तो प्लस 160 था ना, तो जीरोस को तो एज इट इज आपने छोड़ देना है। इसका जो टेंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका टेंस कॉम्प्लीमेंट लिखे ना जरा, क्या होगा टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस, क्या होगा, 0 तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, पहले डिजिट को 10 से सब्ट्रैक्ट करना है, दूसरे को 9 से करना है, तो ये 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखें ना, ये मैंने वही नंबर लिखे हैं 840। सर वो 1001। अच्छा, क्योंकि प्लस 160 में वो 0 भी शामिल था, यहाँ 0 भी शामिल था ना, तो इसको भी जब मैंने 9 से सब्ट्रैक्ट किया था तो ये चीज आ गई, ठीक है। सो वो क्योंकि साइन नंबर में साइन को शो करना जरूरी होता है, 0 उधर लगेगा, इसलिए वो 9 आएगा। अच्छा, अब इनको मैं ऐड करता हूं जी दोनों को, तो देखते हैं कि सही प्लस 97 आता है या नहीं आंसर, ठीक है। प्लस के लिए आपके पास लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो लेट्स सी। अच्छा, इसको ऐड किया जी, ये तो 7 आ गया, ठीक है जी, ठीक आ रहा है। अगर इसको भी कैलकुलेट करते जाएं आप, 7 आ रहा है, ठीक है, ये भी 7 आ गया। अच्छा, इसको ऐड किया जी, अब क्या करें, 6 ऐड करना है, सॉरी, हाँ सॉरी, 0 ऐड करना है, ठीक है, 9 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारे पास 9 क्या आ गया, 9 आ गया। 15 में से 6 क्या 9 ही होता ना, 9 ही होता, ठीक है। तो अभी तक ठीक जा रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा, ये इसको किया हमने, ठीक है, और 10 में आप 6 ऐड कर दें, ठीक है। यहां हमने 0 समझे ऐड किए थे। अगर हम सेकंड स्टेप पे एक एडर ले रहे हैं, हम 0 ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये डिजिट जो है 9 से बड़ा हो गया, तो इसमें 6 ऐड कर दिया, ठीक है। और हमने इधर ऐड करके, सॉरी, चलो इसको, ये 7 आ गया जी, ये 9 आ गया, और ये क्या आ गया जी, 0। 1 और 1 क्या होता है, इधर 1 कैरी, 1 और 1 2, 1 0 एंड 1 कैरी, ठीक है जी। अच्छा, फिर इसको ऐड करें जी, 1 और 1 क्या होगा, 2, ये आ गया, 0 1, फिर ये आ गया, ठीक है। और इसको फिर 6 ऐड कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा जी, 4 0 आ जाएंगे, और एक जो है वो डिस्कार्डेड हो गया। लेकिन टेंस कॉम्प्लीमेंट में जो कैरी एंड कैरी आता है उसको क्या करते थे आप, अब देखिए ये क्या आपके पास आंसर आया, प्लस 097, 3 डिजिट का आंसर, प्लस 097, ठीक जवाब आ गया, ठीक है जी। ये आपका प्लस है, ये क्या है 0, और ये 9 है, और ये 7 है। तो ये देखिए, क्योंकि इधर प्लस वाला बड़ा नंबर था तो नेचुरली आंसर जो है वो प्लस में ही आएगा। अगर नेगेटिव वाला बड़ा होगा तो फिर क्या करेंगे, और मे भी यहाँ पे आपको लास्ट जो साइन बिट आए आपको 9 आंसर, दैट्स शोइंग योर नेगेटिव नंबर। ठीक हो गया जी, क्लियर होगी। अल्फाबेटिक साइन के साथ साइन बीसीडी भी और नॉर्मल बीसीडी भी क्लियर होगी जी। साइन से पहले वाले जो साइन से पहले उसको अगर हम लेट से 9 टू उसको 11 अगर हम नॉर्मली साइन अनसाइन करते हैं तो वो 2 बिट्स होते हैं, लेकिन इस केस में सिर्फ वो साइन है उसमें देखिए इसमें भी वो जैसे बाइनरी में आप करते थे ना कि एक डिजिट और ऐड कर दे, अगर नंबर ऑफ डिजिट्स बढ़ाना चाहते हैं तो वो जो साइन बिट है लास्ट वाला 4 बिट्स का उसको एक्सटेंड करेगा, ठीक है। प्लस वाले नंबर्स को 4 0 से एक्सटेंड करेंगे, और अगर ये जैसे इसको मैं अगर एक डिजिट और बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है, ये वाला इधर 9 एक और आ जाएगा, द साइन बिट इज एक्सटेंडेड, वो रूल अप्लाई होगा, ठीक है जी। तो कुछ इस तरह उन्होंने ये शो कर दिया, ठीक है, एंड यू गेट द राइट आंसर। ठीक हो गया ना। अब ये मैनुअल इसलिए मैं करता हूँ हाथ से ताकि वो स्लो होता है, ताकि आपको बात भी जल्दी समझ। तो आई एम यूजिंग अ हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के जहाँ व्हाइट बोर्ड भी आ जाए और ये प्रेजेंटेशन भी आ जाए और सब कुछ हो जाए। लेकिन आपसे गिला यही है कि आप यू डोंट सी माई वीडियो लेक्चर्स,
काफ़ी मुझे मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए, उसको वीडियो कन्वर्जन के लिए मुझे 2 घंटे लगते हैं पूरे, ठीक है जी। हर लेक्चर को कन्वर्ट करने में 2 घंटे मुझे लगते हैं, और कई दफ़ा मैं घर से ऑफिस का कंप्यूटर एक्सेस करके आपको अपलोड कर रहा होता हूँ, ठीक है। तो यू डोंट अप्रिशिएट, लेकिन वो अगर आपको चीज़ें क्लास में क्लियर हो रही हैं दैट्स वेरी गुड, लेकिन नहीं क्लियर हो रही तो प्लीज गो बैक एंड लिसन टू वीडियो लेक्चर्स। और अभी तक भी रिक्वेस्ट मेरे पास 6-7 लोगों की आई है जो पिछले साल के वीडियो लेक्चर थे, वो भी यही ऐसे ही थे, तो यही चीज़ें समझाई थी मैंने। अगर आपके पास टाइम हो और थोड़ा सा टाइम निकालें तो आप ये चीजें पहले से पढ़ के आ सकते हैं, आगे फिर और इंटेलिजेंट क्वेश्चन करेंगे। लेकिन वो पहले से नहीं पढ़ के आते माशाल्लाह, जो पढ़ाना है मैंने वो पहले से पढ़ के आते हैं। आपके पास फैसिलिटी है, 2 साल की चीजें पढ़ी आप वो भी पढ़े, उसके पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक सिंपल ईमेल मुझे करनी पड़ेगी, अपनी एलएमएस आईडी देनी पड़ेगी और एनरोल कर पाना। वो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो जरूरत समझता है उसको, तो जरूरत नहीं समझता उसको। अभी तक 6-7 की जरूरत है पूरी क्लास में, और 6-7 ही मेरे वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, वही आप देखेंगे, वही फिर A ग्रेड देंगे आप लोग जो है ना। हालांकि मैं कोई कंजूस नहीं करूंगा A ग्रेड देने, और ना ही मैं करता हूँ। 15 A मैंने दिए हुए, प्रैक्टिकली दिए, और इट्स अप टू यू टू गेट द ग्रेड्स। अच्छा जी, अब तो ये सारी BCD की कहानी खत्म हो गई। अच्छा, क्या अब मैं जो ये डिजिट्स हैं इनको किसी और तरह कोडिंग कर सकता हूँ बाइनरी के अलावा? मैं कोई और कोडिंग दे दूँ, 1 2 4 8 की बजाय मैं 1 2 1 2 2 4 दे दूँ, ये और कोडिंग दे दूँ, वेटेजेस दे दूँ, या वेटेजेस नेगेटिव में कर दूँ, कर सकता हूँ जी। या ऐसा करूँ कि जो 0 है उसको मैं 3 शो करूँ, ऐड 3 कर 3 हर एक डिजिट में ऐड करके उसका कोड दे दूँ, वही कोड हो सकता है, ठीक है। नहीं, लोगों को बताना पड़ेगा ये एक्सरसाइज 3 कोड है, इसमें 3 ऐड हुआ है। हाँ, देखिए कोड आप बना सकते हैं। देखिए आप 9 डिजिट है जो डिस्क्रीट वैल्यू है, उसका कोई भी कोड दे सकते हैं आप। लेकिन जरूरी नहीं कि 4 बिट का ही कोड दें, आप 8 बिट का कोड दे दें, 10 बिट का कोड दे दें, सबसे आपके पास 10 डिजिट है, वो आप देखेंगे डिफरेंट टाइप के कोड्स आपको मिलेंगे, ठीक है जी। सो ये तो हमने स्टडी कर लिया, जो कि सीधा सीधा हर डिजिट का BCD था, और उसकी वेटेजेस क्या थी, 1 2 4 8 बाइनरी वाली वेटेजेस थी, तो ये भी हो सकती है 1 2 4 2, इसमें आप कोडिंग कर सकते हैं आप। अगर मैं कहूँ कि ये वेटेजेस आप बाइनरी नंबर की ये है, तो कैन यू राइट ऑल 10 डिजिट्स, लिखेंगे, कोशिश करें। ये आप 0 से 9 तक डिजिट आपने लिखे और इसके मुताबिक कोडिंग करनी है। मुझे नहीं पता कैसे ये करें, 4 बिट यूज करें, 0 से 9 तक कोड करना है। कॉम्बिनेशन देखिए 4 बिट से कितनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनती है, 16 पॉसिबल, 16 में से 10 कॉम्बिनेशन आपने यूज करके इसको कोड करते हैं। लेकिन आपकी वो यूनिक कोडिंग होनी चाहिए। जब हम कहें कि 1 2 4 2 कोडिंग है, वो उसके मुताबिक उसकी इस वेटेजेस के मुताबिक वो डिजिट मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो लेट्स से ये मैं इधर कोड्स डिजिट्स लिख रहा हूँ, ये क्या है, मेरे डिजिट्स हैं, और ऊपर ये मेरे पास अब BCD कोड नहीं है, बल्कि 1 2 4 2 कोड है, 1 2 4 2, ये नया कोड बना दिया मैंने, ठीक है। 0 कैसे लिखूंगा, सारे 0, ये तो सिंपल काम होगा। देखिए हर डिजिट को मैंने वेटेज से मल्टीप्लाई करके ऐड करना होता है ना, तो वो मुझे पता लग जाता है कौन सा डिजिट है। तो 1 को कैसे लिखूं जी, चलो ये भी सिंपल काम है। 2 को कैसे लिखूं, अच्छा चलो मैं इधर 7 लिख देता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि आप ऐसे लिख दें, ये
ये भी 2 है ना, वेटेज को मैं मल्टीप्लाई करूँ वो भी 2 है, वो भी आगे चल के हम देखेंगे इनमें से एक हमें चूज करना है और वो एक खास प्रॉपर्टी होगी। सर वो लेफ्ट वाला सर इसमें से ये कॉम्बिनेशन जी अभी देखते हैं, आपने अभी देखते हैं, मैच करते हैं। हाँ मैंने दोनों लिख दिया आपके लिए, दोनों लिख दिए। सर वो 0010 वाला सेट अच्छा 3 कैसा होगा जी? 3 होगा सर 0011 और 2 and 1 is 3, या ये वाला 1 अगर मैंने कंबाइन किया था तो ये 2 होगा। अब ये 9 नहीं होगा, रिमेंबर इट्स नॉट 9 इट्स 2। अब 3 कैसा होगा जी? अच्छा 3 हो गया। 4 कैसा होगा? 0100 01000 या 0100। सॉरी 2 and 101 2 and 2 is 4, ये भी कोड हो सकता है ना, ठीक है जी। अच्छा 5 कैसा होगा? 4 and 1 5 भी हो सकता है और 2 2 1 भी 5 हो सकता है, ठीक है जी। तो अच्छा चलें, आपको बात समझ में आ गई ना? नाउ यू कैन राइट डाउन ऑल पॉसिबल कोड्स। अब लेकिन इसमें से हम एक कॉम्बिनेशन, क्योंकि हमने यूनिक कॉम्बिनेशन चूज करनी है ताकि हमें ये ना कंफ्यूजन ना हो कि ये वाला 4 है ये वाला 4 है, ठीक है। वी शुड चूज वन टाइप ऑफ कोड, ठीक है। अब देखिए हमारे पास इसमें आप देखेंगे कि इसमें इसको कहते हैं सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड, राइट। यानी कि अगर मैं इसका कोड देखूं, राइट, और आगे कोड लिख लेते हैं, या मैं कोड आपको दिखा देता हूं, उसमें फिर प्रॉपर्टी आपको दिखाते हैं, ठीक है। या एक्सेस 3 कोड हो सकता है। एक्सेस 3 कोड कैसा होगा? 0 कैसा नजर आएगा आपको? इसमें 3 ऐड हुआ होगा, यानी 0 विल लुक लाइक दिस। 0 का जो कोड होगा, 0 का कोड क्या होगा? 3, यानी 3 ऐड हुआ हुआ है। और 1 का कोड क्या होगा? 4, यानी 3, हर एक में 3 3 ऐड कर दिया, एक नया कोड बन गया, ठीक है। और इसमें भी कुछ प्रॉपर्टी हम देखेंगे, ठीक है। और कोड क्या हो सकते हैं? क्या वेटेजेस नेगेटिव में हो सकती हैं ऐसे? -1 -2 4 8 हो सकती है। और इसमें लेट्स से आप 1 कैसे लिखेंगे? 1 ऐसे लिखेंगे 4 0 1 1 1 4 -3 1, ठीक है। सो वी कैन राइट अ न्यू कोड आल्सो, या कोई आप नया कोई इजाद कर सकते हैं, नई वेटेजेस ले लें और वो एक प्रॉपर्टी के तहत आप कोड जनरेट कर सकते हैं जी। अच्छा देन वी विल स्टडी द ग्रे कोड, दैट्स वेरी वेरी पॉपुलर कोड, स्टडी करेंगे। इसमें एक और प्रॉपर्टी है, एरर डिटेक्शन वाली प्रॉपर्टी भी है। ASCII कोड्स, ये तो एवरीबॉडी नोज ASCII कोड्स क्या होते हैं। जो कीबोर्ड पे टाइप करते हैं, कोड निकलता है, पता लग जाता है ये टाइप किया है, ये बी टाइप किया है, ठीक है। एरर डिटेक्शन कोड्स भी होते हैं कि कुछ ऐसे कोड होते हैं वो एरर भी डिटेक्ट कर लेते हैं कि एरर तो नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये हमने कह दिया कि वेटेज को हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है, जहां 0 है वो तो 0 हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये आगे जी कुछ आपकी एग्जाम्पल। तो क्या ख्याल है आपका? ये 1 2 4 ये बनता है? हेलो 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 हेलो, ये बेटे आप जरा कंपेयर करें। यस सर बिल्कुल सर, आपने लेफ्ट वाला यूज किया ना, लेफ्ट वाला यूज किया सर 7 में। अच्छा इसमें आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि लेट्स से, अच्छा ये देखें इसमें ये 0 है। If you look here, this is my 0. This is my 0. If I compare with this, what is this? 9. ठीक है, और ये कैसे आया 9? अगर दोनों को कंपेयर करूं, देखिए 1's कॉम्प्लीमेंट, 0 उसको 1 बना दिया, ठीक है। इसका मतलब है कि वो उसका बेसिकली आपको 9's कॉम्प्लीमेंट दे रहा है डायरेक्ट। 0 को अगर 9 से मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो ये नंबर मिल जाता है, ठीक है। अच्छा 1 को देखें, इसका उल्टा करूं तो क्या बनता है जी? इसको देखें, 8 वाला सर, ठीक है, ये 8 बन जाता है।
इसका मतलब कोई तो रिलेशनशिप हुआ ना इसका आपस में, ठीक है। नाइस कॉम्प्लीमेंट बन रहा है खुद ही, इसको कहते हैं सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड, राइट। उसका तो कॉम्प्लीमेंट ले तो वो नाइस कॉम्प्लीमेंट आपको दूसरा डिजिट मिल जाता है। जी जी, 5 का 4 बन जाएगा, 3 का जो है वो 2 बन जाएगा, ठीक है। तो अब हो गया जी टाइम, चलो सही है। तो इसका देखें 3 का क्या बन गया जी, 3 का क्या बन गया, सर 3 का बनेगा 6, 6 4 और 5 तो ये इस तरह बनते जाएंगे, ठीक है। 4 और 5 का ये बन जाएगा, इसका ये बन जाएगा। और 9 से चलेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्स एक दूसरे के आते हैं। अच्छा ये, अच्छा सिर्फ आप एक्सरसाइज के लिए बता देते हैं, एक्सेस 3 कोड क्या सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड है? एक्सेस 3 को जरा देखें, यस सर, यस ये भी सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री, वो नेगेटिव वाला आखिरी वाला सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री है, वो भी है, ठीक है, वो भी है सर ये ज़्यादा आसान नहीं है। जी। BCD ज़्यादा आसान नहीं है। BCD is more human नेचर से या ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए, ठीक है। अगर आप एक नंबर सिस्टम में रहेंगे, BCD में रहेंगे, तो आपका कंप्यूटर भी BCD में कैलकुलेशन करेगा। अगर आप लेट्स से 1 2 4 2 कोड यूज करेंगे तो वो सारी कैलकुलेशन उसमें करेगा। ये आपकी समझाने के लिए कि देखिए डिफरेंट डिस्क्रीट वैल्यूज को डिफरेंट कोडिंग हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर को पता है कि जब ये नंबर आएगा तो ये डिजिट होगा। इसी तरह कलर्स का है, कलर्स को आप कोड जब असाइन कर देंगे, वो जब 1 और 0 आएंगे हमें पता चलेगा कौन सा कलर है। कलर तो रिकग्नाइज नहीं करते ना, तो 1 और 0 को देखो। चलो ठीक हो गया जी, थैंक यू वेरी मच। ये समरी खुद ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सो यू कैन रीड द समरी। तो ग्रे कोड नेक्स्ट टाइम हम करेंगे।